Hello students, I am Monica Soral from ME International School, Nayagaon. Today we will be learning the chapter 8 of History, Women and Reform. Yes, Women and Reform. The topics which we are going to learn over here is Condition of Women, Raja Ram Mohan Roy, Widow remarriage and child marriage, Women's education and case studies, Women's reform movements in Maharashtra and Bengal. Now, what is reform? See, first, before in the olden days, ancient times, and the medieval time also, women were not given the position. They were not given the rights. Many rights were taken away from them, and actually, they were not given the rights only. Taken away is the different story. They were not given only any rights. They were not giving any importance those during that time. And the colonial rule brought with its spread the Western thought, education and scientific rationale in India. The educated elite became responsible for transmitting these thoughts to the masses. During the 19th century, Indian reformers sought to change aspects of Indian life that were irrational and violent. अब कुछ पीरियड जो ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया में आए थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लेके आए, वो चेंज. अब उस चेंज से काफ़ी सारे जो अपने इंडियन रिफॉर्मर्स थे वो क्या चाहते थे कि हम अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करें, यानी कि उनको सुधारें. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपनी सोसाइटी में थी जो सही नहीं हो रही थी उसको हमें चेंज करना है. सो दीज थिंग द रिफॉर्मर्स दे थॉट दैट वी शुड डू दिस. Now, the legalized reforms remained only on paper. In practice, many social evils plaguing the Indian society continued well into the following centuries, some of which continue to exist even today. आज तक भी ये वाली जो चीज़ें हैं कुछ सोसाइटी में, मतलब अपनी सोसाइटी में कुछ जगहों पे ये चीज़ें अभी भी हो रही हैं. Inequality based on caste and gender was deeply ingrained in the consciousness of our society. Many reformers rose to prominence and various associations were set up. Now, बहुत सारी चीज़ें ये जो सुधारने के लिए लगी हुई थी कि हम लोगों को अपनी सोसाइटी को चेंज करना है. ये जो चीज़ें अपने दिमाग में अपने अंदर घुसी हुई है कि like women were not given importance, the caste differences, all such things they wanted to remove from a caste. Now see, this is the extract from Raja Ram Mohan Roy's writing. इस एक्सट्रैक्ट में राजा राम मोहन रॉय ने एक डायलॉग है बिटवीन एडवोकेट एंड द अपोनेंट ऑफ सती. एक तो एडवोकेट है और एक था जो सती को अपोज कर रहा था कि सती सिस्टम नहीं होना चाहिए, या ये अभी क्या बोलते देखो, दैट वुमेन आर बाय नेचर ऑफ इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग विदाउट रेजोल्यूशन अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट subject to passion and void of virtuous knowledge. They, according to the perception of the Shastras, are not allowed to marry again after the demise of their husbands and consequently despair at once of all worldly pleasures. Hence, it is evident that to these unfortunate widows is preferable to existence. अब एडवोकेट क्या बोल रहा है कि जो विमेन है इनको कोई भी राइट एक्चुअली नहीं मिल रहा है. जब इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वैसे भी दे आर द वीकर सेक्शन है ये, तो इनको वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. सो इससे तो बेटर है कि अपनी वाइफ हस्बैंड की डेथ के बाद उनके फ्यूनरल पाए पे बैठ के खुद भी उनके साथ सती हो जाए. सो द अपोनेंट जो अपोज कर रहा था इस बात को वो क्या बोलता है, विमेन आर इन जनरल इंफीरियर टू मैन इन बॉडीली स्ट्रेंथ एंड एनर्जी. कॉन्सिक्वेंटली द मेल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कॉर्पोरल वीकनेस हैव डिनाइड टू देम दैट एक्सीलेंस मैरिड. अब वो क्या बोल रहा है, देखो ये चीज़ विमेन अपने आप से कमज़ोर थोड़ी ना है, इनको बनाया गया है. द सोसाइटी हैज़ मेड देम, द सोसाइटी हैज़ थॉट दैट विमेन आर वीक, इसलिए उनको इस तरह का बनाया हुआ है. तो वो अपने मन से तो इस तरह की है नहीं और अपन ने उनको ये चीज़ दे रखी है, तो ये तो गलत बात है. और ये जो मैरिट है, जो एक्सीडेंट है, जैसे ये बोल रहे हैं कि शादी नहीं करनी, तो शादी क्यों नहीं कर सकते, करने देनी चाहिए ना. फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्ड मैरिज वॉज देयर, दे वो एट अ वेरी यंग एज उन लड़कियों की शादी हो जाती थी, एंड देन उसी यंग एज में अगर वो विडो हो जाती है तो लाइफ लॉन्ग शी हैड टू स्टे दैट वे. सो दैट वॉज रॉन्ग. तो ये चीज़ सोसाइटी ने ही उन लोगों को दी थी. सो दिस थिंग ही इज सेइंग, द अपोनेंट इज सेइंग that they are entitled by the nature, and afterwards they are apt to say that women are naturally incapable of acquiring these merits as to their inferiority in the point of understanding. And did you ever afford them a fair opportunity of exhibiting their natural capacity? How then can you accuse them of want of understanding? अब उन्होंने क्या बोला, क्या तुमने कभी भी उनको समझा विमेन को, या क्या तुमने कभी उनको अपॉर्चुनिटी दी कि वो उस पोजीशन पे चढ़ पाए? अगर तुमने अपॉर्चुनिटी दी तो हाउ कैन यू टेल दैट दे आर वीक.
आप अपने मन से कैसे बोल सकते हो कि उनके में स्ट्रेंथ नहीं है, दे आर वीक, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो अपोनेंट ने उसको, जो एडवोकेट थे उनको उन्होंने अपोज किया था। नाउ सी हियर वी हैड रेड अबाउट what they were saying that many reformers rose prominence and various associations were set up with the with the aim of reforming the society। उनका क्या एम था कि हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, यानी कि सुधार लाना है सोसाइटी में। इन दिस चैप्टर यू विल बी स्टडिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड टू ब्रिंग देम इम्प्रूवमेंट्स इन देयर कंडीशन। कंडीशन ऑफ वुमेन क्या थी इन इंडिया? वुमेन वो ट्रीटेड इन्फीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू मैन। उनको क्या हमेशा कैसे ट्रीट करा कि दे आर इन्फीरियर टू मैन, उनसे ये वाले जो भी काम है नहीं हो सकते, और वो जो बाहर सोसाइटी में नहीं घूमना चाहिए, दे हैव टू स्टे इन द हाउस ओनली। एजुकेशन से उन लोगों को अलग किया गया था, एवरीथिंग। द बर्थ ऑफ अ गर्ल वॉज अनवेलकम, हर मैरिज वॉज अ बर्डन एंड शी बिकेम अ विडो, देन शी वॉज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। ये सारी चीज़ें पहले से ही थी कि एक तो उनके बर्थ होते ही गर्ल का, तो उनको खुशी नहीं होती थी किसी को भी कि गर्ल बॉर्न हो गई, एंड देन उसकी मैरिज वो एक बर्डन था, दैट वी हैव टू गेट मैरिड, उनको बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा और वो सब था। देन आफ्टर शी गॉट विडो, तो उनको उसको इनऑस्पिशियस मांगा था, कोई भी अच्छे फंक्शन में उनको अलाउ नहीं करते थे। विमेन वो कन्फाइंड टू देयर हाउस होल्ड, कुछ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं दी गई थी। मैनी पीपल डिड नॉट कंसिडर एजुकेटिंग गर्ल्स ऑफ मच यूज। कॉमन सुपरस्टिशन ऑफ दीज टाइम्स वॉज दैट द विमेन was educated, she would be widowed. Women did not have the right to inherit property. The practice of sati, child marriage and female infanticide was prevalent. ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी। Britain took the degraded condition of women in India as an indicator of the country's inferior status. James Mill took the women's question and used it to make a civilization critique of India. अब यहाँ पर ब्रिटेन जब आया, ब्रिटिश जब आया, तो उन्होंने ये वाली चीज़ को आगे लिया। उन्होंने बोला कि यहाँ की विमेन की स्टेटस इतनी डाउन क्यों है, एंड दे वांटेड टू रिफॉर्म इट, दे वांटेड टू चेंज इट। तो जेम्स मिल ने जो सबसे पहली जो चीज़ दी थी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बोला विमेन्स क्वेश्चन को रेज किया कि क्यों ऐसा क्यों है, वाई you all are not giving the women any rights. So from the early 19th century, debates and discussions on various social customs and practices became more common due to the development of new forms of communication. यहाँ 19th century में सिर्फ फिर debates और questioning होने लगे कि why the women are not giving any rights. Then books, pamphlets, newspapers, magazine, leaflets were printed, which are cheaper and more easily accessible to the people. Common people could read and express their views and opinions. अब यहाँ पर बिल्कुल मैगजीन, बिल्कुल चीपर उसमें अमाउंट में जो मैगजीन मिलती है, उसमें उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी जिससे विमेन का रिफॉर्म हो, चेंजेस आए सोसाइटी में। All kinds of issues, social, political and religious, could be discussed and disseminated to wider. Now Sati was the practice of burning widow on the funeral pyre of their husbands. Women who committed sati were praised and were said to have achieved the status of goddess. अब उन लोगों को क्या बोला गया था, जैसे ही जो हस्बैंड इज डेड, उनको उन फ्यूनरल पायर में बैठना पड़ता था लाइव, एंड दे हैव टू डाई विद देयर हस्बैंड, और उनको क्या बोला जाता है कि ये सती हो गई, मीन्स शी इज बिकम द गॉडेस। ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स इट वॉज प्रैक्टिस बाय द राजपूत प्रिंसी फैमिलीज। अब मुगल टाइम्स में ये एक्चुअली राजपूत प्रिंसी फैमिलीज में ये चलन चला था सती का, एंड दे हैड स्टार्टेड दिस थिंग। नाउ Vijayanagara kingdom, however, in the areas of British administration, particularly Calcutta and district during the 18th and 19th century, the practice revived on a very large scale. The decision to commit sati was said to be voluntary, but often women were forced to do it. अब ऐसे तो बोला जाता था कि voluntary है, अगर women की इच्छा हो then only she would be sati, but यहाँ पर ये गलत थे, they were forced to be sati and they were forced to burn themselves in the funeral pyre. People of lower classes rose in social status when the imitated ceremonies performed by the higher classes. Also, if the widow died, then the share of her husband's property was divided among the remaining family members. अगर यहाँ पर उनको विडो जो है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ होती है, तब भी उनकी उसकी जो प्रॉपर्टी है हस्बैंड की, वो दूसरों में शेयर हो जाती थी, दे वर नॉट गिवन टू द women. And then orthodox Hindu groups justify the practice on the basis of scriptures like the Dharma Shastras. Raja Ram Mohan Roy launched a campaign against the practice and interpreted the text to prove that the scriptures did not favor sati and permitted women to live in as widows. अब जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, उनको विडो की तरह रह सकते हैं, बट डोंट लेट देम बी सती. And through his efforts, sati was finally banned and declared illegal by Governor General William Bentinck in 1829.
इनकी राजा राम मोहन रॉय की वजह से ये वाला जो सती का था वो उसको बैन किया गया एंड एनीवन हु डज दैट विल बी पनिश्ड। तो ये जो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे उन्होंने उसको इलीगल बना दिया। नाउ राजा राम मोहन रॉय वॉज एन इंडियन रिलीजियस सोशल एंड एजुकेशन रिफॉर्मर हु चैलेंज्ड अनजस्ट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। अब राजा राम मोहन रॉय को जो ये इंडिया में अनजस्ट जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चल रही थी वो उसके अगेंस्ट थे, तो उन्होंने इस सब चीज़ों को स्टॉप करने की कोशिश करी और सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करी फ्रॉम दीज थिंग्स एंड अबाउट चेंजेस इन हिंदू सोसाइटी अंडर द ब्रिटिश रूल। ही इज ऑफन कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजा राम मोहन रॉय वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बिकॉज ही ब्रॉट लॉट्स ऑफ चेंजेस over here in India. And born in Bengali Brahmin household, he was well versed in many languages such as Sanskrit, Arabic, Persian, Bengali, English. He brought two newspapers, Sambad Kaumudini Bengali and Mirat ul Akbar Persian. He established the Brahmo Samaj, which was later renamed Brahmo Samaj in Calcutta. इन्होंने ब्रह्मो समाज का establish किया था. He believed that Western education would take India and the path of progress. और उनका मानना था कि Western education से काफ़ी कुछ इंडिया की सोसाइटी में changes आ सकते हैं.